नमस्कार। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दारेन शाहिदी और लेकर आया हूं ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स का सीधा प्रसारण। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं हाजिर हूं। 3 अगस्त तक, जब तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स चलेंगे, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सहयोगी कांता। Thanks, Dareen. Good evening, viewers. Of course, when we talk about Commonwealth Games for the people of India, there's certainly a feeling of deja vu, considering the fact last time we were the hosts for the Commonwealth Games. We set up a legacy. We did a great performance, 101 medals, 38 gold medals. Questions in everybody's mind, what are we going to be doing this time? But just from an academic point of view, why is Glasgow hosting the Commonwealth Games this time? Well, there were 3 countries in contention: Canada, Nigeria and Glasgow. And you know, Dareen, Canada hopped out right in between because of a funding issue. Nigeria put up a plea that no African country had done this before, but when it came to the technical bid, Glasgow's bid was far, far superior. Also keep in mind they've had a past history of hosting the Commonwealth Games twice over, Dareen. They didn't have too much work to do this time. बिल्कुल, 1970 और 1986 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर चुका है और इस बार जो तैयारी की गई है ग्लासगो में, उसके बारे में जो लोग वहां पहुंचे हैं, हमारे नुमाइंदे पहुंचे हैं, उन सब लोगों ने यही खबर दी है कि शानदार तैयारी है, बिल्कुल ग्लिच फ्री। ऐसा नहीं है कि फलां चीज अभी नहीं हुई है, ये स्टेडियम तैयार नहीं है, रश किया जा रहा है। तमाम चीजें पहले से तैयार हो चुकी हैं। अब वहां पे एथलीट्स पहुंच चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की ओपनिंग सेरेमनी थोड़ी ही देर में होने वाली है। Of course, we're going to take you straight across to the Celtic Park, which is in the eastern part of Glasgow, just about an hour's drive from the athletes' village where our contingent is putting up. 2,000 performers, 40,000 spectators, 1 billion television viewers. Those are the statistics doing the rounds this time around just for the opening ceremony. We're certainly looking forward to that. And of course, there are expectations in everybody's mind about how we're going to be doing. Dareen, you and I were discussing this. Do you think it's right to make that straight comparison from what happened last time, considering the fact that Glasgow is not putting up the same events that we put up in 2010? बिल्कुल, और कंपेयर करना जो है थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि 17 स्पर्धाएं हैं, उसमें सिर्फ 14 में भारतीय कंटिंजेंट हिस्सा ले रहा है। और कैसी तैयारी है भारतीय कंटिंजेंट की, उस पर हम पहले एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हम टाइमिंग कर रहे थे तो वो जो सारे टाइमिंग हमने ऑलरेडी बेटर कर दिए हैं। हम लोग डेली ट्रेनिंग में एवरीडे वी आर इम्प्रूविंग बाय मार्जिनली बट डेफिनेटली। और हमारा फोकस अभी ये रहेगा कि जो विमेंस की जो टीम है उसको थोड़ा ज़्यादा निखारने की कोशिश की जाए, सो दैट वो अपना जो टारगेट है वो 5 से हम लोग जो पोडियम फिनिश हम उनको लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी बच्चे जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरी आशाएं हैं कि हमारी अगर टीम बेस्ट 5 में फिनिश करती है देन आई एम हैप्पी। पहले जो हम 2010 में इंडिया में जो हुआ था दिल्ली में, तो हम पार्टिसिपेट किया हुआ है। अभी पहले से अभी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है टाइमिंग। हाँ, अभी इस बार तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हम रेडी, टाइमिंग अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाओगे हम इंडिया के लिए। हम लोग रेडी है कॉमनवेल्थ के लिए जितना है, और दिखाना भी, मेडल भी आना भी है। We have got a wonderful opportunity to participate in Commonwealth Games, and we will also wish for all Indian athletes to achieve well, and we will also make sure that we will also do good. I will win, not immediately but definitely.
So that quotation is also now we are using Indian cycling team, and we got also a very good coaching team. We have one wish that all Indians please pray for our Commonwealth Games for all Indian athletes. जैसे कि हम लोग बात करें पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स की, उससे अभी तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। अभी हम लोग की जैसे कि बेस्ट 6 to 8 टीम में फिनिश कर रहे हैं, और हम लोगों को होप है कि हम लोग जल्द से जल्द बेस्ट 5 में, बेस्ट 3 में फिनिश करने के लिए ट्राई करेंगे। बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी टीमें कॉमनवेल्थ में आती हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, और उनके नाम से कई रिकॉर्ड हैं वर्ल्ड में। लेकिन हमारी प्रिपरेशन जिस हिसाब से चल रही है, और हम एक अलग तरह का शेड्यूल हमारे कोच साहब ने हमें करवाया है पिछले 6-7 महीनों के दौरान, क्योंकि ये अभी वर्ल्ड लेवल का एक कोर्स करके आए हैं UCI से, तो इससे हमारे काफ़ी टाइमिंग इंप्रूव है। अमृत शॉर्ट डिस्टेंस के, सोमवीर मीडियम डिस्टेंस के एंड्योरेंस के, और मैं लॉन्ग डिस्टेंस का। फेडरेशन की तरफ से हिल पे प्रैक्टिस करके आए हम लोग, वहाँ भी कैंप था, और अभी दिल्ली में है, तो तैयारी अच्छी है, देखते हैं। लेकिन यूरोप का लड़कियाँ 95-94 से बॉक्सिंग खेल रही है, वुमेन बॉक्सिंग, और ऑलमोस्ट ऑल हमारे लिए अच्छी कंट्री इसके अंदर है, तो मैं सोचता हूँ हम भी अच्छा करेंगे। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कुछ अभी कह नहीं सकते कि बॉक्सिंग में बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना, तो ड्रॉ पे भी डिपेंड करता है। और जो ओलंपिक में मेडलिस्ट लड़कियाँ हैं वो भी इसी पूल के अंदर है कॉमनवेल्थ में, तो देखते हैं। हमारी लड़कियाँ भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और काफ़ी अच्छी हैं। फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, हर तरीके से हमें बाउट एनालाइज किया जाता है, और मेंटली ट्रेनर भी है जो हमें गाइड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं। तो बाकी कोचेज़ हैं हमारे साथ जो अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। क्रूशल टाइम है कि हम अपने आप को किसी भी सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को मिस नहीं कर सकते, तो हर चीज़ को मतलब बारीकी से लेके चलना पड़ता है। मैं सभी एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़की का बॉक्सिंग आए, तो बाकी हर कंपटीशन, मेजर कंपटीशन वगैरह मेरी को ओलंपिक में मेडल ले चुके हैं, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा पूरा टारगेट है इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल लाऊं, तो मेरा पूरा उम्मीद है, मुझे पक्का मुझे गोल मिल जाएगी। तो पूरी तरह ट्रेनिंग भी अच्छा तरह कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में अब तक डिलीवरी के बाद वापस आया है मैं, तो मैं भी थोड़ा, और मेरे लिए थोड़ा टफ भी होगा, और अच्छा ट्रेनिंग तो चल रहा है। होप भगवान जो देता है अच्छा देता है। अभी तक मैंने 60 कैटेगरी में, तो मैं सेकेंड टाइम में 60 में खेला, पहले मैं 60 में नहीं खेलती हूँ। लास्ट टाइम ओलंपिक क्वालिफाई में मैं 60 में दिया है, 2 पॉइंट से मैं लॉस हो गया था क्वालिफाई राउंड में लास्ट में। तो उसके बाद ओलंपिक के बाद 2 साल ब्रेक दे के, अब तक बेबी होने के बाद 1 साल 3 मंथ्स हो गया मेरा, तो फिर वापस आया सिर्फ ये कंपटीशन के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स वगैरह, फिर आगे 2006 में ओलंपिक के लिए। तो 60 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ रह गया इंग्लैंड टीम और ये आइलैंड, ये दोनों में थोड़ा टफ रहेगा, बाकी तो थोड़ा ईजी है। तो मैं भी पूरी तरह से तैयार तो है ये लोग से फेस करने के लिए। टीम को लेके भी हमारा एक्सेप्ट है कि हम पिछले बार से अभी कॉमनवेल्थ में अच्छा रिजल्ट है टीम का भी, और जो मेरा खुद का है पर्सनल, जो अभी स्कॉटलैंड पे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुए थे, वहाँ पे मेरा 1 गोल्ड 1 सिल्वर था। अभी तो मुझे वही फोकस लगाना है कॉमनवेल्थ में भी कि मेरा गोल्ड आए, 2 गोल्ड आए। पिछले बार कॉमनवेल्थ में मैं वॉल्टिंग टेबल पे 7th रैंक में थी, तो इस बार मेरे ऊपर सबका होप है, और मेरा भी है कि मैं इस बार मेडल लाऊं, गोल्ड लाऊं। तो मेरा पूरा कोशिश है कि मैं इस बार मेडल लाऊं कुछ इंडिया के लिए। होता क्या है, जब भी हम लोग कंपटीशन या पोडियम पे उतरते हैं और इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बॉडी बहुत लाइट हो जाती है, और उस समय कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं मोस्टली डिवोशनल या भक्ति सॉन्ग सुनता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा मन बहुत शांत रहता है। लास्ट कॉमनवेल्थ मेरा 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस कॉमनवेल्थ में मेरे वो जो 2 मेडल थे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं अपने बेस्ट इवेंट पे एटलीस्ट 2 गोल्ड जीत के लाऊं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और एशियन गेम्स के लिए जितने भी एथलीस्ट हैं, मैं उनको अपना बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ, और उनसे बोलता हूँ कि लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा 101 मेडल था, इस कॉमनवेल्थ में हमें पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ना है। रिसेंटली जो हमने वर्ल्ड कप खेला था, उसमें जो हमारी गलतियाँ थी, ओवरऑल टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पर मेन ये था कि लास्ट मिनट में जो हमने गोल कंसीड करवाए हैं, फिर उसके बाद प्लेंटी कॉर्नर हम ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर वर्क किया। तो सभी प्लेयर अभी मैच टू मैच प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, हम श्योर कि हम इस बार अच्छा करेंगे। कि हमारे देश में बड़ी प्रतिभाएँ हैं महिला मुक्केबाजी में, और कॉमनवेल्थ के लिए 3 सिलेक्ट हुई हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जीत हो और देश का नाम
गौरवमय। We are going in as defending champions and it's going to be different. But for me, you know, I feel it's another tournament. I know it's very prestigious, you know, but we are, you know, working hard for it. And not very different, but right now I'm focusing a lot on my strength. You know, I had a 1 year's break, but now I'm really back with few good results, you know, and I'm just back from a tournament where we, you know, had again good performances. So I'm very confident. I think we'll do well again this time in the Commonwealth Games. Watch me playing in the Commonwealth Games at Glasgow, and we're sure to make you proud. All the best for Commonwealth Games. All the best. Well, there you have it. All the athletes there completely pepped up for the Commonwealth Games. We're sending in a huge contingent this time around. But it's very important to draw that apple-to-apple comparison. I know, you know, all of us in India would be expecting this time the Commonwealth results to be better than last time, but like we were discussing with Darren, is that a possibility? Now, you must remember that a host nation has the prerogative to add and drop certain events, particularly the optional events which are part of the Commonwealth Games Federation. Now, when we were hosting the Commonwealth Games, we made sure we put up all those events that we were strong at and capitalized on it. But Glasgow thinks otherwise. This time we don't have archery featuring there. We don't have tennis featuring. The shooting medals have been reduced from 36 to 19. In wrestling, you don't have the Greco-Roman style of wrestling. So if you're talking about 101 medals last time, it can easily be about 70 to 75 medals this time. So the question is not how many more medals that we should be getting. The question is, can we raise that bar of performance, and where are we on the medal tally? इसलिए यहाँ पे कांति दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस बार जो भारतीय कंटिंजेंट, भारतीय एथलीट्स, भारतीय खिलाड़ी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 14 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 17 टोटल स्पर्धाएं हैं वहां पे, जिसमें से 14 में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि पिछली बार 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसमें 101 मेडल्स लेकर के भारतीय जो कंटिंजेंट है, भारतीय जो टीम है, भारतीय खिलाड़ी हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार हमें यह देखना चाहिए कि तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करके गए हैं हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर होकर के गए हैं। कम स्पर्धाओं में उन्हें हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, तो हमें यह तुलना करना अच्छा नहीं लगता। ये अनफेयर होगा कि पिछली बार 101 लेके आए थे, इस बार आपने टैली बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अगर नहीं बढ़ाई तो हम आपको उतना ज्यादा श्रेय नहीं देंगे। ऐसा करना थोड़ा गलत है। So let's have a realistic expectation out here, but let's also understand what is happening with the other countries. If certain events have been reduced, so has it been reduced for the other countries as well? But remember, Australia was way ahead of us last time in the Commonwealth Games. England slipped to number 3 position just by a whisker. Just one gold medal out there that made a difference. And remember, England had not fielded some of its best athletes, keeping the upcoming Olympic Games in mind. But this time, it's on their own home ground. They're fielding some of their best athletes. So the tussle is certainly going to be between Australia and England. Where do we stand? We got to be keeping our focus on Canada as well, because they're sending in a huge contingent. They could be perhaps more adaptable with the conditions, the weather conditions, with the diet conditions. So we have a tough fight with Canada as well. Where are we going to be landing on the medal tally? We'll know in a couple of days from now. बिल्कुल मेडल टैली के बारे में हम बात करें, उससे पहले जो इवेंट होने वाला है कांति, वो है ओपनिंग सेरेमनी। और उसके बारे में काफी हाइप है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि एकदम वर्ल्ड क्लास, बहुत जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल होने वाली हैं। क्या ये इवेंट, क्या ये ओपनिंग सेरेमनी जो 2010 में दिल्ली में सेरेमनी हुई थी, उससे बेहतर साबित हो सकती है? क्योंकि जो दिल्ली में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी कांति, उसकी झलकियां हमारे दर्शक देख सकते हैं। 2010 की ये ओपनिंग सेरेमनी है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली की ये ओपनिंग सेरेमनी आप देख रहे हैं। क्या इससे बेहतर ग्लासगो की ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है जो सेल्टिक स्टेडियम में आज होने वाला है? Darren, yes, that's a perfect measure of comparison to begin the games with. Of course, we had a beautiful show, keeping all the brouhaha aside, you know, about hosting of the Commonwealth Games. The fact remains our opening ceremony was splendid. We had that beautiful aerostat there kept as part of the opening ceremony. Glasgow is, of course, putting up its huge LED screens to make sure it has a good comparison between what we had done. And if you talk
about Glasgow and Scotland, the first thing that comes to your mind is, you know, all the operas, the orchestra, the theatre, the ballet. So I'm sure the opening ceremony is going to be an eclectic mix of all these elements, and it should be having all the panache and attitude that UK is known for. Absolutely. Rod Stewart, Susan Boyle, ये सब लोग गाने वाले हैं वहां पे, और 40,000 दर्शकों के सामने परफॉर्मेंस होगी। इंग्लैंड की महारानी वहां मौजूद होंगी। सचिन तेंदुलकर, अगर हम बात करें भारतीय पार्टिसिपेशन की या भारतीय रिप्रेजेंटेशन की, दर्शकों में जानी मानी हस्तियों में सचिन तेंदुलकर होंगे। क्रिकेट हर जगह घुसने लगा है आजकल, क्रिकेट के बगैर जो है इंडियन सोचते नहीं है। तो यहां ग्लासगो में जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें क्रिकेट के नुमाइंदे के तौर पर, भारत के नुमाइंदे के तौर पर गुडविल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर, यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, तो वो भी शामिल होंगे वहां। लेकिन कमिंग बैक टू प्रिपरेशंस, कांति, हमारे हीरो हैं सुशील, हमारे हीरो हैं योगेश्वर, वो उन लोगों ने कैसी तैयारी की है, पहले हम सुशील की तैयारी पर एक नजर डालेंगे और हम देखेंगे कि कैसी उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे। हालांकि उन्होंने अपना वेट कैटेगरी जो है इस बार चेंज कर लिया है, तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं उनसे इस बार मेडल की, नया चैलेंज? Yes, and Sushil has actually increased his weight category from 66 to 74 kgs. That's keeping in mind the upcoming Rio Games for the Olympics, where he was supposed to do that. Now, he hasn't played too many competitions in this category. The recent one that he played, he won a bronze medal. So, question is, can he consolidate himself in this new weight category and bag a gold for us this time in the Commonwealth Games? Remember, when we're talking about Sushil Kumar, the expectations go very, very high. It would be very difficult for any one of us in India to figure out any logic or reason as to why he's finding it difficult to be bagging a gold medal. So I'm sure Sushil Kumar must be under tremendous pressure himself to live up to all these expectations, Darren. जी, लेकिन जो अभी हमने प्रिपरेशन का वीडियो देखा कांति, उसमें आशीष एक एथलीट है हमारे, उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, थोड़ा सा हम शांत हो जाना चाहते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग स्टेडियम में मौजूद होते हैं तो हमारा शरीर जो है हल्का हो जाता है, इसलिए हम पहले थोड़ी कोशिश करते हैं। बड़ी मासूमियत से वो कह रहे थे कि हम तैयारी कैसे करते हैं। सुशील की तैयारी एक अजीबोगरीब तैयारी है। किसी ने मुझे बताया कांति कि ये एक अजीबोगरीब एथलीट ऐसे हैं कि इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्डीज पैदा किए हैं। जब जो कोच होता है वो बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा करता है, लेकिन यहाँ खिलाड़ी जो है वो कोचेस पैदा कर रहा है। That's a great way of putting. तो सुशील ने किस तरह से तैयारी की उसके बारे में उन्होंने हमसे बातचीत की, पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद कांति कुछ कहना चाह रही है, थोड़ी उतावली है सुशील के बारे में कहने के लिए, उसके बाद हम सुनेंगे। जी, अच्छी ट्रेनिंग चली हुई है और आपने देखा है यहाँ पे कि जो पूरी टीम है हमारी वो पूरे जोरों से लगी हुई है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम अच्छा करें कुछ देश के लिए। देश की उपेक्षाएं हैं कुश्ती पे, तो बस कोशिश करेंगे कि देश के लिए अच्छा करें। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वही आशीर्वाद प्यार दे के हमें भेजें कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा करें। वो जो भी कोचिज हमारे शेड्यूल बनाते हैं, चाहे वो सुबह 4 बजे का बनाए या दोपहर का 12 बजे का वो बनाएं, वो स्ट्रेंथ की कराएँ या पावर की कराएँ, स्पीड की कराएँ, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग वो कराएँ, तो उनको हम फॉलो करते हैं। तो फुल हैप्पी है कि हाँ हम अच्छा टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। आज टूर्नामेंट हो जाए तो हम टूर्नामेंट के लिए पूरे परफेक्ट तैयार। नहीं, अच्छी तैयारी है 74 kg की, और मैं फर्स्ट टूर्नामेंट खेल चुका हूँ अभी इटली में, वहाँ मेरा सिल्वर था। तो एक वो वहाँ का जो अनुभव है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें मिलेगा। और 66 कैटेगरी हमारी फ़िलहाल ने ख़त्म कर दी है, तो अब 74 में ही खेलना पड़ेगा। वो हैवी कैटेगरी है, तो उसमें करेंगे कि फिर से अच्छा करें। बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, पूरी तैयारी के साथ गए हैं रेसलर्स हमारे। Absolutely, Darren. And talking about Sushil Kumar, I was pretty much restless to make this point that he's one athlete who's shown so much of consistency in his performance, and his modest behavior, his hard work and determination. We saw that right from the Commonwealth Games. We saw a progression. Of course, he didn't take part in the Asian Games, and we saw him again bag that medal in the Olympic Games. He's one of the few athletes who's got a consistent level of performance, and his grit and determination has had a cascading impact on the wrestling contingent as such, because we have another wrestler who's shown equal grit and performance. बिल्कुल, सुशील कुमार उसे अपना छोटा भाई मानते हैं, उनका नाम योगेश्वर दत्त है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका लंदन ओलंपिक्स में। योगेश्वर दत्त भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं ग्लासगो, और उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार
कुछ न कुछ करिश्मा जरूर करके वो वापस भारत लौटेंगे और जो छोटे भाई का खिताब दिया है सुशील कुमार ने उनको उसे बरकरार रखेंगे. That puts a lot of pressure on him, but I'm sure Yogeshwar can actually live up to that pressure. We still have very, very good memories of his performance there at the London 2012 Olympics, where he went on to bag that bronze medal. But remember, once again, he's changed his weight category from 61 to 66 kgs. I guess it's only boxers and wrestlers who are so happy about putting on weight therein. But the fact is, it is not easy when you change your body weight and compete on an international platform in another category. You know, your technique has to change. You got to consolidate yourself and find your form as soon as possible. And remember, when we're talking about Sushil and Yogeshwar, there's no time to waste. We're looking at medals. Absolutely. Talking about medals, अगर हम भारत के कॉमनवेल्थ के इतिहास की बात करें, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है. अब तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें 4 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जिसमें हिस्सा लिया है उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा है. और पिछला प्रदर्शन तो आप जानते ही हैं, 101 मेडल लेकर के दूसरे स्थान पर रहना बहुत बड़ी बात है और सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का वही रहा है. उसके पहले जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया. मेलबर्न में 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें 7वां स्थान हासिल किया. उसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां स्थान हासिल करते रहे हैं. लेकिन पिछले 2-3 सालों से, पिछले 4 सालों से, 5 सालों से अगर भारतीय एथलीट्स के परफॉर्मेंस को देखें, बीजिंग ओलंपिक्स से अगर देखें, बहुत जबरदस्त बड़ा बदलाव आया है. और अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से इंडिविजुअल मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, क्रिकेट की बात करते हैं हम लोग, 7-8 देश खेलते हैं कांति, उसमें जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पूरा देश जो है पागल हो जाता है. मेरा ख्याल है कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन इन खिलाड़ियों का है जो इंडिविजुअल मेडल्स लेकर के आते हैं बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे, जो जहां के 100 कंट्रीज कंपीट कर रही होती. I think Darren, a very important point here I need to make here. I think the hosting of the Commonwealth Games has set a legacy in its own. If you look at our progression after that, it's been tremendous in the Asian Games and the Olympics that I was mentioning. And we've set a new benchmark. We are talking about sports like boxing, wrestling, shooting, archery, badminton, which we never used to do so a couple of years back. And, you know, like Darren was talking about Commonwealth Games and its performance. Now, there's certain traditions and protocols that have to be maintained irrespective of who the host nation is, and we of course going to be seeing that in the opening ceremony in just a short while from now. One is the Queen's Baton Relay. Now this is something which is religiously followed. We had this relay beginning many days back, and we had 4,000 torchbearers going through all the Commonwealth nations, and today of course you're going to have the final torchbearer come into that venue and light that cauldron where you have the flame there burning for the rest of the days of the Commonwealth Games. That's a beautiful moment. You also have the oath-taking ceremony where you have an athlete of the host country along with the flag bearer of the host country who comes and says they're going to be playing this Commonwealth Games in the true spirit of sportsmanship. And of course, I think the most exciting part of the entire show, which every country would be looking forward to, is the parade of athletes into that stadium. I know Darren is waiting to talk about who's going to lead the contingent, but the fact is India is going to be the country that's going to be marching in first this time because we were the host country last time around. बिल्कुल यही नियम है और यही इतिहास रहा है कि जो कंट्री होस्ट होती है वो जिसने पिछली बार होस्ट किया होता है वो वर्तमान जो गेम्स होते हैं उसमें उनका कंटिंजेंट लीड करता है. तो अब से थोड़ी देर बाद जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है उसमें आप भारत का झंडा सबसे आगे देखेंगे और उसे लीड कर रहे होंगे हाथ में तिरंगा लिए हुए सूबेदार विजय कुमार, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं. शानदार एथलीट हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया था लंदन ओलंपिक्स में, सिल्वर मेडल लेकर के आए थे 25 मीटर्स रैपिड फायर पिस्टल में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने पिछली बार 2 गोल्ड मेडल जीता, सिंगल्स में भी और पेयर इवेंट में भी, और उससे पहले जो मेलबर्न में इवेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, सिंगल्स में भी और पेयर्स में भी. 25 मीटर्स रैपिड फायर पिस्टल इनका इवेंट है और बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं ये, और ये आज तिरंगा झंडा लेकर के
लीड करेंगे भारतीय कंटिंजेंट को। स्कॉटलैंड की जो कंटिंजेंट है वो सबसे पीछे होगी। नियम यही होता है कि जो होस्ट नेशन होता है वो सबसे पीछे चलता है और पिछली बार का होस्ट सबसे आगे। And I think Vijay Kumar rightfully deserves this honor because of all his achievements that he's had in the recent past. Of course, we remember Abhinav Bindra doing the same honors last time around at the Commonwealth Games, but this time rightfully deserved by. इस बार भी अभिनव बिंद्रा को ही करना था, लेकिन चूंकि उनका इवेंट है इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मना नहीं भी करते तब भी विजय कुमार, the fact is that he rightfully deserves to be there because his medal last time at the Olympics came as a beautifully pleasant surprise for all of us. So we're going to be seeing him, of course, in just a short while from now leading the contingent. But talking about the cultural program which is lined up in store, of course, it is a closely guarded secret, but Darren has managed to get some of the secrets out. Rod Stewart should be performing there. Remember, some guys have all the luck, so he's going to be around. Susan Boyle from Britain's Got Talent. Now, she's somebody who wouldn't have ever dreamt that she could be performing on a platform like this. She's a girl from Scotland, there from Glasgow. So people of Glasgow will be looking forward to watch her perform, and she is really lucky to be performing along with Rod Stewart today. And talking about Glasgow, you know, the first thing that comes to your mind is all the theatres, the operas, the orchestra, the ballets. I'm sure today's program is going to be an eclectic mix of all these events. We're certainly looking forward to that beginning soon, Darren. बिल्कुल शानदार ओपनिंग सेरेमनी का अब हम इंतजार कर रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, थोड़ी ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। कहा यह जा रहा है कि बहुत अच्छी तैयारी की गई है और जैसा कि कांति ने बताया, नामी गिरामी हस्तियां आ रही हैं वहां पे। रॉड स्टुअर्ट वहां परफॉर्म करेंगे, अपने आप में एक देखने वाला नजारा होगा। और उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट था, मैंने उसे रिवील कर दिया। मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद क्लोजिंग सेरेमनी में काइले मिनोग आए, जिनकी आप बहुत बड़ी फैन हैं। So you gotta wait for that, Darren. But another important thing that I'd like to make out here, Glasgow is doing things already differently, because if you look at all the editions of the Commonwealth Games we've had till now, all the mascots have been animals. If you remember, Shera, Darren, in 2010 was a lion, giving an indication of, coming of India's emergence as a superpower. But this time in Glasgow, the mascot is not an animal for the first time. It's a thistle, which is a plantling, and it's called Clade, named after River Clade. And River Clade is so important for the people of Glasgow and Scotland because, it acts as a great medium and a source of employment opportunities. If you look at all the multinational financial service companies, all of them have set up shop on the banks of Clade. So Clade has been rightfully named as the mascot, which is a thistle this time for Glasgow. So the big अगली बार जब हमारे यहाँ ओलंपिक्स होगा, होपफुली कभी ना कभी तो होगा जरूर, तब हमारा मैस्कट कौन होना चाहिए? गंगा होनी चाहिए मेरा ख्याल है। Well, that's debatable, Darren, but the fact is Glasgow is doing things differently. बिल्कुल और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और हर बड़ा शहर जो है, अगर आप देखें तो बड़ी नदियों के किनारे बसा हुआ है, और आज विश्व में सबसे बड़ा संकट जो है वो जल संकट है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज, पानी बचाइए। तो चलिए, कुछ देर में ही अब शुरू होने वाली है ओपनिंग सेरेमनी। हम आपको कुछ शॉट्स दिखाते हैं। ये ऑडियंस, वहां पर दर्शक जमा हो चुके हैं। सबको अब इंतजार है कि कब वो रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो और वो उसका लुत्फ उठाएं। भारतीय दर्शकों को ये यहां पर इंतजार है कि देखें 2010 में जैसी ओपनिंग सेरेमनी यहां हुई थी दिल्ली में, वैसी ओपनिंग सेरेमनी वहां होती है ग्लासगो में या नहीं। हालांकि उन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी की है, लेकिन कंपैरिजन करना क्या ठीक है? ओपनिंग सेरेमनी में कर सकते हैं। I think it's fair to make a comparison, and we put up a good show. Like I said, keeping all the brouhaha aside, I think we put up a fantastic show at the end of it. And just for some more tidbits of information, we had a team from Glasgow who came in a couple of months back to actually figure out how he went through our entire security arrangement for the games, how we used digital media as a medium to promote our games, and they've gone back and replicated the same. They've really used a lot of digital technology this time, and they've made sure the word has spread around. They've got
tremendous number of volunteers from Glasgow who have agreed to be part of these games. And, you know, volunteers form such an important part of the entire process. We saw that in Delhi ourselves. It's completely a group effort. And when you have, you know, the local people involved in the entire execution of the event, it just becomes a beautiful thing to do. जी बिल्कुल, वहां से जो खबरें आई प्रिपरेशन के बारे में, उसमें एक बात ये भी थी कि खुद ग्लासगो के लोगों ने वॉलंटियर किया और उन्होंने अपने अपने हिसाब से जिस तरह से भी शहर को सजा सकते थे, ग्राफिटी लगा सकते थे, या अपने अपने घरों को सजा सकते थे, या झंडे लगा सकते थे, विदेशियों का जो मेहमान वहां पे पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए जिस तरह की तैयारी की गई है, वो सब बिल्कुल परफेक्ट और शानदार रहा है इस बार, जैसा कि ग्लासगो से रिपोर्ट आ रही है। अब शुरू होगा कार्यक्रम थोड़ी देर में और 3 अगस्त तक ये पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स चलेगा। तब तक ऊंट किस करवट बैठता है ये आने वाला समय बताएगा। I think it's also important to let our viewers know that the activities are starting tomorrow. The games are starting tomorrow. We have Indians in contention there as well. So we will, of course, be bringing you all that live action, getting you minute-to-minute analysis on what our Indian athletes are actually बिल्कुल, बैडमिंटन का इवेंट कल शुरू होगा। भारतीय नजरिए से अगर देखें तो साइना नेहवाल नहीं खेल रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। MC मैरीकॉम विमेन बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम, अब तो फिल्म भी बन गई उनके ऊपर, तो वो नहीं है वहां पे मौजूद, तो एक थोड़ी सी निराशा है। लेकिन जो 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 हमारे पुरुष बॉक्सर्स हैं उसमें शिव थापा, देवेंद्रो, ये सब लोग अच्छी तैयारी करके गए हैं। Why are you forgetting Vijender Singh? Vijender Singh, of course. We are of course looking forward to him. You know, all in all, we have a fantastically placed contingent. Of course, Marycom could not make the cut. We have Pinky Jhangra in her place, who actually beat her in the trial round and has made it there for the Commonwealth Games. And this is the first time women boxing has been introduced, like he said, in Commonwealth Games. Olympics also was the first time when women boxing was introduced. I don't know why the world has taken so long to realize that women can box as well. So we've got a good lineup, and we are hoping for medals. Of course, a huge number of medals from shooting, considering the fact that there has been a lowering of the medals. We hope our hockey team can do something, because we are pinning our hopes. Our men are looking in good form. Of course, Sardar Singh is leading the show out there. He's very happy that Danish Mushtaba is coming back, and he's hoping the penalty corner is going to be looking a little stronger. Squash players. यहाँ पे हॉकी के बारे में आपने बात की ना, कांति, तो एक चीज बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि जो पेनल्टी शूट आउट है उसके थोड़े से नियम बदल चुके हैं, थोड़ा सा उसमें तब्दीली की गई है। पेनल्टी फ्लिक कहा जाने लगा है, अब उसे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो दर्शक देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा ज्ञान देना अच्छी बात नहीं होती है। तो बहरहाल जो अब तक तैयारी हुई है उससे काफी उम्मीदें हैं भारतीय टीम को, और अब से बस थोड़ी देर में, यानी कि 2-3 सेकंड में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधे ग्लासगो 2014। Enjoy the program. This is the start of the show, the grand opening ceremony, the bit where we list all the things we have done, all the reasons it's great to be Scottish. It's been a wee bit tricky though, it's caused considerable acrimony, because the list of the things we've to mention's the same as the list of the things that we've not. So the